I am going to today talk about the management of society affairs. The housing movement in Mumbai and Thane gained momentum in the 60s. You all know, 60च्या दशकाच्या आधी मुंबईत basically either they were bungalows or they were झोपडपट्टीज or they were chawls. So the housing movement which came into existence, it started somewhere in the 60s. And why was this movement? It was basically done to encourage values of self-help, democracy, equality and solidarity. So where something dwelling together, एकत्र राहणं, group मध्ये राहणं, something of that sort. And of course, because it was a cooperative movement, it was to create a new employment opportunities for people in the rural areas. So if you see, the cooperative movement basically started for the rural areas, but as far as housing is concerned, how important it became for the urban area. And you will see that the progress in the last 4 decades has increased 4 times. In Mumbai, if you see, the cooperative housing society has become the order of the day. आज मुंबई में जो भी आता है, अगर कहीं घर लेना है या he wants to buy a house or have a home, तो the first thought that comes to him is cooperative society में जाके घर देखना. Now the MCS Act 1960, उसके बारे में I want to state something. It's a state subject falling within the scope of the state legislation. Each state has its cooperative act to regulate working of the cooperative movement. हमारा कौन सा है? हमारा MCS Act 1960 है. The cooperative housing society network in urban areas is aimed for the middle and lower income groups to have their own house at a reasonable rate. So CHS system, ये जो cooperative housing system क्यों आया in the urban areas? It is basically aimed कि लोगों को घर मिल सके. Because बंगला बांधना सबके बस का नहीं है, that we all understand. And of course भाड़े के घर पे जो पगड़ी के घर में it has got its own limitations. तो इसलिए एक नया विकल्प लोग ढूंढ रहे थे, वेयर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म हो गया, जहाँ पे मिडिल और लो इनकम ग्रुप के लोगों को रहने के लिए बड़ी सुविधा हो गई. कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज अ डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ हाउसिंग ऑन ओनरशिप बेसिस. मतलब यहाँ पे एक बिल्डिंग भी खड़ी है, उस बिल्डिंग में आपका एक आशियाना है, आपका एक घोंसला है, जिसकी ओनरशिप आपके पास हो सकती है. एज अ सेट कि वो लैंड खरीदो, फिर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी शुरू करो, कॉन्ट्रैक्टर को लेके आओ, मटेरियल ढूंढो, यहाँ पे बना बनाया घर मिल जाता है, वो भी ओनरशिप पे. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. मेंबरशिप इज ग्रांटेड बाय वे ऑफ शेयर परचेस विथ राइट टू ऑक्यूपाई द हाउसिंग इन कमर्शियल यूनिट. मतलब एक बार जैसे आप मेंबर बन जाते हो ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू द शेयर्स, जो आप शेयर खरीदते हो, तो उसके एवज में आपको यू गेट द राइट टू ऑक्यूपाई. आपका जो भी आपने हाउस खरीदा है, दुकान खरीदा है, कमर्शियल यूनिट खरीदा, वॉट एवर यू हैव परचेस, तो वो आपका एक अधिकार हक बन जाता है. द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन महाराष्ट्र हैव इम्प्रूव्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कॉमन मैन. एक इंडिविजुअल को एक बंगला खरीदना, लैंड खरीदना इज नॉट पॉसिबल, बट विथ हिज लिमिटेड रिसोर्स ऑफ इनकम एटलीस्ट वो एक 1 रूम किचन, 1 रूम हॉल किचन, 1 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट ले सकता है, विच इज नाउ पॉसिबल. Types of cooperative societies, there are so many cooperative societies: consumer societies, cooperative banks, credit societies, crop protection societies, producer societies, tenant ownership societies, tenant co-partnership, industry listed and premises societies, general society, farming society. Tenant ownership is what? It is land is held in either leasehold or freehold by the societies, and houses are owned or are to be owned by the members. मतलब लैंड पहली होती है, लीज होल्ड में ले सकते हो या फ्री होल्ड ले सकते हो, वहाँ हाउसेज, बट जो घर बनते हैं वो मेंबर्स की खुद की ओनरशिप के बनते हैं. सिमिलरली टेनेंट को पार्टनरशिप वेयर द सोसाइटी होल्ड्स बोथ लैंड एंड द बिल्डिंग आइदर ऑन लीज होल्ड और फ्री होल्ड एंड अलॉट्स इट टू द मेंबर्स. मतलब यहाँ पे उन्होंने साथ में आकर वेयर दे हैव कम टुगेदर एंड दे हैव प्रिपेयर्ड दैट सोसाइटी एंड मेड दैट बिल्डिंग, एंड वेयर दे आर गिविंग, दे आर अलॉटिंग. मतलब यहाँ पे अलॉटमेंट होता है व्हेन इट इज डन between your own members, तभी allotment होता है, because agreement नहीं हो सकता है वहाँ पे. Then you have open plot societies where the society buys the plot and where the building is constructed by the society. मतलब सोसाइटी खुद पहले प्लॉट लेती है, मतलब पहले 10-12 लोग मिलके अपना एक सोसाइटी बनाते हैं, फिर दे स्टार्ट कलेक्टिंग सम मनी एंड देन दे बाय अ प्लॉट. कॉन्ट्रैक्टर लाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर उस बिल्डिंग को बनाता है और फिर वो अलॉटमेंट करते हैं अपने मेंबर्स को. फ्लैट ओनर सोसाइटी वेयर सोसाइटी इज फॉर्म बाय द डेवलपर. डेवलपर खुद कंस्ट्रक्शन करता था, खुद डेवलप करता था उस प्रॉपर्टी को, उसके बाद ही विल पास ऑन द फ्लैट्स
through a sale or purchase agreement under section 4 of MOFA. So यहाँ पे specifically where flat owner society बोली जाती है, जहाँ पे builder आपको flats allot करता है. Then owners society where purchasers form a society, purchasers themselves come together and they form a society. Then tenant society where with the permission of the landlord the society is formed. Frankly, I have not seen a tenant society till today because in all fairness the landlord never allows the members to form a society. In housing board societies which you already know, Mahada constructs, BMC constructs, collector land पे होता है, SIDCO होता है. So there are these are the government kind of societies which are today prevalent. मतलब आज बहुत ज़्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में बन रही है ये. और let us understand the unique features of the cooperative movement. Number one, of course, establishment of cooperative courts. आपको पता है court मतलब for what? For any criminal activities there are courts. But even to settle disputes in a cooperative society there is a special court known as a cooperative court. तो वहाँ पे जो भी cooperatives जो अभी आपने आपको दिखाई, I showed you so many cooperatives just now, वहाँ पे अगर कोई इशू खड़ा होता है then the member is supposed to file the case with the cooperative courts. Now as far as we are concerned, we are governed by the MCS Act 1960, Rules 1961 and the bylaws of the cooperative society. So every society which is registered under these Act, Rules and bylaws are governed under these. The MCS Act 1960, there are amendments which have been carried on this from time to time. I mean, like you must have seen the last one, 97th constitutional amendment which was carried out in 2014. More than 44 amendments have been carried out since 1960. The amendment of bylaws was the latest when it was done in the year 2014. Now let us understand the framework for management. You see, the bylaws are written rules and regulations for cooperative society management. एक society को manage करने के लिए the act is of course there prevalent for all types of societies. मतलब अगर आप act पढ़ते हो तो आपको अचरज लगेगा. Even when I was reading that for the first time, I was wondering ये सब कहाँ लागू होता है. Then it struck me that इतने सारे cooperatives है तो उन सब के लिए वो act बना है. But for managing the cooperative society उसका निचोड़ बना के निकाल के वो bylaws बनाए गए. तो contents of the bylaws differs for different societies. Now what do we mean by different societies? Of course we have observed that for premises and for residential कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है. It is very minor changes है उसके अंदर. But as I said, for different societies मतलब वो पत्तपेड़ी है, sugar lobbies है, all different societies के लिए the bylaws will be different because it cannot follow the cooperative societies bylaws. That you can understand. Society is managed as per the provisions of the MCH Act, rules and bylaws of the cooperative societies. So entire society management is within the ambit of the Act, rules and bylaws. The guidelines for preparation of the bylaws are as per the MCS Act. So MCS Act supersedes everything. मतलब it is the mother of everything. मतलब nothing can go beyond the Act. आइए समझते हैं कि members के rights क्या है. As a member, जैसे अभी आपसे बातचीत हो रही थी कि फ्लैट खरीद लिया है, एग्रीमेंट हो चुका है, एग्रीमेंट होने के बाद मेंबरशिप के लिए आप अप्लाई करते हो. वंस यू बिकम अ मेंबर, व्हाट काइंड ऑफ राइट्स यू आर गोइंग टू एंजॉय. नंबर वन, टू पोजेस द फ्लैट, शॉप और गैराज और कमर्शियल प्रीमाइसेस. नंबर टू, टू अपॉइंट एन एसोसिएट और अ नॉमिनी, दैट इज यू कैन नॉमिनेट समबडी. एसोसिएट मेंबर आप बना सकते हैं. एक बार मेंबर बन गए, देखिए जब तक मेंबरशिप नहीं बनती है तो किसी को आप एसोसिएट या नॉमिनी नहीं बना सकते. मतलब जस्ट बाय परचेसिंग अ फ्लैट एंड डूइंग द एग्रीमेंट, परचेस एग्रीमेंट, you don't get these rights. But once you become the member of the society, then you have the right to appoint an associate member, to make nominations of your choice, then of course to inspect and receive copies of the society records and documents as per the provisions of the laws and rules. तो this is of course पुराने laws में था section 32 था. Now it is 154B8 subsection 2, which gives you the right to inspect and receive copies of the society records and documents, again within the ambit of the Act, rules and bylaws. Then you have got the right to vote and participate in the elections. तो जब तक आपकी मेंबरशिप बरकरार नहीं होती है आप किसी भी मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकते हो,
you cannot attend any meeting, but once you become a member, you not only have the right to attend the meeting but to vote and participate in the elections. You can equally enjoy all perks and privileges that are there for the member. मतलब member में कोई भी disparity allowed नहीं है. एक बार आप member बन गए तो आपका फ्लैट 1 रूम किचन भी होगा तो यू आर एट पार विथ 4 बेडरूम हॉल किचन का मेंबर. सो वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है. नाउ एट द सेम टाइम लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज अक्सर ये देखा गया है कि लोगों को अपने राइट्स तो भली भांति पता होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, वो जानना भी बहुत जरूरी है. एज अ मेंबर you are required to attend all meetings and participate actively. कई बार हमने देखा है कि लोग मीटिंग में जाते हैं, साइन मारते हैं रजिस्टर के ऊपर और निकल जाते हैं खाना खाने के लिए, which is wrong. As a member, it is your duty to not only attend but also actively participate in the meetings. Then of course you need to nominate a person. Why this is very important is because हर एक को ऐसे ही लगता है कि मैं कहाँ मरने वाला हूँ. एवरीबडी थिंक्स कि भाई अपने को अभी लाइफ बहुत जीना है, देखा जाएगा आगे. प्लीज अंडरस्टैंड लाइफ एंड डेथ आर अनप्रेडिक्टेबल. तो आपको खुद को नहीं पता है आप कितने साल जीने वाले हो. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट वाइल यू आर अलाइव यू नॉमिनेट वन पर्सन ऑफ योर चॉइस. सो ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन इट इज नेसेसरी दैट यू मेंटेन योर प्रॉपर्टी प्रॉपरली. In the sense, every property requires some kind of maintenance. So, as a good citizen of this country, as a good member of the society, and as a good human being, it is necessary that you maintain your property in proper way. Then, not to cause any nuisance to other members. देखिए इस पे कई बार वाद विवाद देखा है हमने. There are lots of arguments I have seen on this. कि लोगों का एक टिपिकल सेंटेंस होता है कि ये तो मैं मेरे घर में कर रहा हूँ, तो मैं ओनरशिप फ्लैट में रहता हूँ, मैं कुछ भी करूँ. प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन यू हैव परचेज अ फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, it is very very necessary that you do not do anything that will cause nuisance to other members. At the same time, you need to abide by all decisions taken by the majority. सोसाइटी में एक बात आप देखोगे, किसी भी सोसाइटी में, आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट टुडे इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, एनी सोसाइटी यू टेक, देयर इज वन थिंग विच इज देयर इन अबंडेंस. एक चीज आपको वहां हर इंसान में देखने को मिलेगी, दैट इज इन्फ्लेटेड हाई ईगोज. सोसाइटी में अक्सर ये देखा गया है, लोगों के इतने बड़े ईगो होते हैं. Every person thinks that discipline should be maintained, but don't start with me. Every person thinks that decision should be taken as per the way I think, the way I want it, which is wrong. In a cooperative housing society, it is necessary that decisions be taken by the majority only. So जो majority लोगों का decision होगा उसको accept करना यह आपका आद्य कर्तव्य है. To provide cooperation in matters of all kinds of decision making. जब कोई डिसीजन मेकिंग का दौर चल रहा हो आपकी कमिटी मीटिंग में या आपकी जनरल बॉडी मीटिंग में, तो इंडिविजुअल मेंबर की मतलब आपकी जो जरूरत है उसको थोड़ा बाजू में रखते हुए, आपका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको थोड़ा बाजू में रखते हुए, सबके हित में जो होने वाला है उसी का साथ देने में आपका हित है. बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड अगेन, all decisions are going to be taken with majority only. And of course, as a cooperative society, you are supposed to work within the ambit of the act, rules and bylaws. Remember, managing committee to be a constituted body. मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज है जहाँ पे वो लोग इलेक्शन नहीं करते हैं, वो सिलेक्शन करते हैं. तो सिलेक्शन मतलब क्या कि दे कम टुगेदर आइदर इन द जनरल बॉडी एंड वहाँ पे बैठे बैठे डिसाइड करते हैं आप सेक्रेटरी बनिए, आप चेयरमैन बनिए, आप ट्रेजरर बनिए, आप कमिटी मेंबर बनिए. प्लीज अंडरस्टैंड, अनलेस एंड अनटिल अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी डज नॉट टेक चार्ज, any decision taken by this committee
who is a selected committee which has not been properly constituted, any decision taken by them can be challenged before the competent authority. Managing committees are required to hold elections before expiry of its terms and follow the laid down provisions of the election process. So not necessary. कई बार हम लोगों को मिलते हैं तो ये सवाल हमसे जरूर करते हैं या ये इन्फॉर्मेशन शेअर करतात, सर आमचं अजून काल संपायचा आहे, 5 years are to be ended after so many months. Please understand, the election process is required to be conducted before expiry of your period. So people generally try to tend to that situation कि after the term is over then we will start the election process, which is wrong. The term for the managing committee, as you all know, is a 5 years period. 5 साल का ही कार्यकाल दिया गया है. हर 5 साल के बाद ये कमिटी का दायित्व बनता है कि they need to initiate the process for conducting the elections. The officer bearers to be elected in the managing committee meeting. मतलब जब आपकी इलेक्शन प्रोसेस शुरू होती है तो प्लीज रिमेंबर, elections are conducted to elect the members of the managing committee. Elections are never conducted for electing the secretary or the chairman or the treasurer. ये जो ऑफिस बेयरर्स है, they are selected by the managing committee in the managing committee meeting. तात्पर्य बहुत सिंपल है कि वोटिंग जब होगा तो आपके या तो 6 या 8 या 9 या 11 या 13, whatever figure that has been stipulated as per the bylaws, elections will be conducted for those number of members. Once those number of members are elected, उसके बाद उन मेंबरान की एक मैनेजिंग कमिटी मीटिंग गठित की जाएगी. The day they are going to conduct that first managing committee meeting, from amongst the elected managing committee members, उन elected committee मेंबरान में से एक बंदे को या बंदी को सेक्रेटरी चुना जाएगा, एक को चेयरमैन चुना जाएगा और एक को ऑनरेरी ट्रेजरर चुना जाएगा. अब अगर किसी सिचुएशन में सेक्रेटरी पोस्ट के लिए वहां पे एक मत नहीं होता है, उस सिचुएशन में मैनेजिंग कमिटी में इलेक्शंस किए जाएंगे. जहां पे अगर एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट आगे आते हैं तो मैनेजिंग कमिटी में वोटिंग के थ्रू डिसाइड किया जाएगा कि कौन सेक्रेटरी बनेगा, कौन चेयरमैन बनेगा और कौन ट्रेजरर बनेगा. सो ऑफिस बेयरर्स आर ऑलवेज इलेक्टेड इन द मैनेजिंग कमिटी मीटिंग. देन यू नीड टू कंडक्ट द मैनेजिंग कमिटी, द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग एंड द SGBM मीटिंग. सो ये सोसाइटी में 3-4 प्रकार के जो मीटिंग्स हैं, 3 प्रकार के बेसिकली होते हैं. वंस द फर्स्ट जनरल बॉडी इज कंडक्टेड, वेयर एवरी सोसाइटी नीड्स टू इंश्योर दैट एक साल में 12 मैनेजिंग कमिटी मीटिंग होनी चाहिए. हर साल में एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, वार्षिक सर्वसाधारण सभा लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, जरूरी है. और उसी एक साल में, उसी एक फाइनेंशियल ईयर में आप जितने चाहो उतने स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुला सकते हो. लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग जब आप बुलाते हो तो देयर द एजेंडा विल बी स्पेसिफिक. यू विल नॉट हैव द लास्ट एजेंडा एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयर. सो वहां पे जब आप स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाओगे तो एजेंडा आप पहले डिसाइड करोगे और उस एजेंडा के बाहर किसी भी प्रकार का कितना भी इंपॉर्टेंट मैटर हो वो उस जनरल बॉडी में डिस्कस नहीं किया जाएगा. नाउ इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, द मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड थ्रू कोऑप्शन. सो अगर किसी कारणवश, मे बी बिकॉज ऑफ डेथ, मे बी बिकॉज समबडी वांट्स टू बैक आउट, मे बी ही रिजाइंस फॉर सम पर्सनल रीजंस, maybe he is disqualified, whatever reason, अगर किसी कारणवश there is a vacancy which has been created, then that vacancy has to be fulfilled through the process known as co-option. Today I am going to speak on the co-option procedure, which is the last part of this presentation. The managing committee to ensure proper accounts and audit. तो अकाउंट्स और ऑडिट का दायित्व किसके ऊपर है? ये पूर्णतः मैनेजिंग कमिटी के ऊपर है. तो इसलिए अकाउंटेंट जब वो नियुक्त करते हैं
तो they are the ones who should see that they are appointing the correct person. Similarly, when the auditor is to be appointed, so it is the duty of the managing committee to find out about the auditor and ensure that all required activities are fulfilled by the accountant and the auditors. The auditors are need to be changed every 2 years. तो कन्वेंस के लिए प्रोसेस इनिशिएट करने का काम ये मैनेजिंग कमेटी का होता है. एट द सेम टाइम द एंटायर सोसाइटी का प्रॉपर्टी एंड द एम्यूनिटीज एक्सेट्रा it is required to be maintained in good condition. So who is responsible for that? The managing committee. इसीलिए secretary, chairman, treasurer, committee, they are the ones who always take rounds of the society buildings. They are the ones to whom you should go and report if there is any kind of damage done in the building, because वो पूरा देखभाल करने का जिम्मा ये managing committee पे ही होता है. At the same time they are required to regulate proper parking allotments. So ये जो parkings दिए जाते हैं, ये पार्किंग के अलॉटमेंट का पूर्णतः जिम्मा मैनेजिंग कमेटी पे होता है. इनफैक्ट आई कैन शेयर विथ यू मेनी टाइम्स आई हैव सीन दैट पीपल फाइट द कमिटी इलेक्शंस टू कम ऑन बोर्ड एज ए मैनेजिंग कमेटी मेंबर, बिकॉज दे वेरी वेल नो कि कमिटी के हाथ में वो पार्किंग का होता है. सो देयर दे ट्राई टू यूज फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट. ये भी हमने देखा हुआ है. बट ऑफकोर्स द लॉ इज स्टिपुलेटेड हाउ द पार्किंग शुड बी रेगुलेटेड, बट रेगुलेशन करने का दायित्व करते हुए ये पूर्ण मैनेजिंग कमेटी पास ही होता है. एट द सेम टाइम दे नीड टू टेक एक्शन ऑन सोसाइटी रिलेटेड मैटर्स. किसी भी मैटर का अगर उनके तरफ किसी ने पहुंचाया है तो उसके ऊपर एक्शन लेने का कर्तव्य ये कमेटी का ही होता है. एंड ऑफ कोर्स अगर रिकवरी, इफ एनीबडी इज नॉट पेइंग इन टाइम, देन उनके खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स ये मैनेजिंग कमेटी हैज टू इनिशिएट. द रेजोल्यूशन एवरीथिंग ऑफ कोर्स योर जनरल बॉडी इज सपोज्ड टू गिव, बट इनिशिएट करना उनका कर्तव्य है. The managing committee also to carry out prescribed process to adopt the latest model bylaws. So bylaws को adopt करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूर्णतः अंजाम तक ले जाने का जो जिम्मा है वो मैनेजिंग कमेटी का ही है. Then they need to consider and decide all the applications. So whenever an application is made, it has to be submitted to the managing committee. और ये मैनेजिंग कमेटी का कर्तव्य है दैट दे नीड टू कंसिडर ऑल द एप्लीकेशंस दैट आर रिसीव्ड. मेंबरशिप का होने दो, एनओसी का होने दो, किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट आती है, एप्लीकेशन आती है, तो वो उसको अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा ये हमेशा मैनेजिंग कमेटी का ही होता है. देन दे आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर होल्डिंग मिनिमम 12 नंबर ऑफ एमसी मीटिंग्स. जो मैंने अभी आपको बताया कि साल में कमिटी के 12 मीटिंग होना अनिवार्य है, जरूरी है. उसी प्रकार से एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, वार्षिक सर्वसाधारण सभा, दिस हैज टू बी कंडक्टेड. द लास्ट डेट फॉर कंडक्टिंग इज 30th September ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर. सो एवरी ईयर 30th September के पहले इट इज नेसेसरी दैट योर एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग इज कंडक्टेड. सिमिलरली जनरल बॉडी मीटिंग, व्हेन यू आर कंडक्टिंग अ जनरल बॉडी मीटिंग, the quorum is 2/3 or 20 whichever is less. ये आपने देखा होगा नीचे लिखा होता है कि if 2/3 or 20 whichever is there, then the committee will, the general body can start. In case if you are not expecting that, then आप एक नोट नीचे लिखते हो कि अगर हाफ एन आवर में quorum नहीं बनता है, उसके बाद मीटिंग एडजॉर्न की जाएगी और हाफ एन आवर के बाद जो भी मेंबर्स प्रेजेंट है उनको लेकर they are to be considered as the quorum and the meeting will start. But generally for a special general body meeting to start, the quorum is either 2/3 or 20, whichever is less. Then to consider specific issues only. This is very important. Whenever you are calling for a special general body meeting, it is necessary to understand that the meeting needs to be called only with specific agenda points. मतलब special general body meeting में आपको कभी भी last point ये नहीं मिलेगा any other matter with the permission of the chair. Always there will be specific matters which will be taken up for discussion. Once those matters are finished, the meeting has to be concluded. In that meeting, last moment inclusions are not permitted. Then to discuss composition of common charges. So whenever there are any charges that are to be levied, it has to go before the general body. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई बार हमने यह देखा है कि मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में डिसाइड करते हैं लोग कि हमको
जो मेंटेनेंस है उससे पूरा नहीं पड़ता है, लॉट ऑफ डेफिशिएंसी है, तो हम लोग अगले साल से मेंटेनेंस बढ़ाते हैं। तो किसी भी प्रकार का बढ़ावा अगर आपको करना है, फिर वो मेंटेनेंस में हो, वो पार्किंग में हो, वो कोई इंटरेस्ट में हो, एनी काइंड ऑफ इंक्रीजमेंट दैट यू आर ट्राइंग टू लुक एट, the composition has to be decided by the general body only. So repair का मैटर हो, मेंटेनेंस में, रिपेयर मेंटेनेंस का भी हो, it has to go to the general body. Then the general body will also decide on the structural audit. Structural audit, as you all know, as per bylaw 76, has to be conducted by all societies. मतलब it is mandatory. But when I say this, it has to be presented before the general body. The general body has to give the permission. At the same time, even when the structural audit report is procured, it is necessary to be placed before the general body for approval. At the same time, framing and adopting of parking policies. तो जैसे मैंने कहा कि if you read the bylaws, bylaw number 78 से लेकर 82, 83 तक वो पार्किंग के बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन अगर एक सोसाइटी अच्छी तरह से चलाना चाहते हो, तो it would be ideal to form your own parking policy. Now what do I mean by parking policy? Parking policy मतलब अलॉटमेंट किस प्रकार से होंगे वो आप डिसाइड कर सकते हो, 4 व्हीलर के कैसे होंगे, 2 व्हीलर के कैसे होंगे, 3 व्हीलर के कैसे होंगे, ये आप डिसाइड कर सकते हो पॉलिसी में। पार्किंग जब आप अलॉट करते हो तो फर्स्ट कम फर्स्ट में करोगे, लॉटरी सिस्टम में करोगे या डिपॉजिट सिस्टम में करोगे, ये आप तय करोगे। At the same time, when you are allotting this parking, तो what kind of charges you are going to levy, ये आप डिसाइड करोगे पार्किंग पॉलिसी में। उसी प्रकार से अगर कोई मेंबर पार्किंग पॉलिसी को एडर नहीं कर रहा हो या कोई गलतियां कर रहा हो, तो उसके ऊपर फाइन कितना लगेगा, पेनल्टी कितना लगेगा, ये भी आप डिसाइड करते हो। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर अगर आपकी कमिटी बैठती है, in fact I have seen lot of societies where they are appointing professionals to prepare the parking policies. So framing of the parking policy can be done through a professional, but implementing the final parking policy is in the hands of the general body. So जो भी आप clauses बनाओ या terms condition लिखो, whatever you decide, it has to be passed by the general body. Only then that policy can be binding on all the members. Then to discuss the quotations called for various matters. So whenever there is an activity to be conducted in the society, activity in the sense कोई रिपेयर काम लेना हो आपको, कोई नया इंस्टॉलेशन करना हो सोसाइटी में, किसी भी प्रकार का खर्च हो जो जिसकी अनुमति मैनेजिंग कमेटी के पास नहीं है, सो इट इज नेसेसरी दैट यू डिस्कस ऑल द कोटेशंस इन द जनरल बॉडी ओनली। नाउ एज अ मैनेजिंग कमिटी आई हैव ऑलरेडी सेड दैट दे हैव टू accomplish the audit on or before the month of July, because as per the bylaws March 31st is the ending of your financial year. 3 months within that, that is April, May, June, July, 4 months within that. So before July 31st you are expected to finish with your audit work, and before 30th of September they expect you to finish with your annual general body meetings. As a committee you need to work as per the provisions of the general body and directives within the act, rules and bylaws. So किसी भी प्रकार का, even if the general body has given you directions for carrying out any specific activity in a specific manner and a resolution is passed in the general body, then it is your duty to work within that framework and perform as per whatever directives that have been issued. As a secretary or a chairman, you do not have additional powers to do the same thing as per your whims and fancies. Please understand that. Then you need to prepare and circulate the financial statement before calling the annual general body meeting. So ये बहुत necessary है कि before you call the general body meeting आप 14 days की notice निकालो, उसके साथ जो भी आपके फाइनेंसेस का लेखा जोखा है वो हर मेंबर को पहुंचना चाहिए, एंड यू नीड टू रिजॉल्व पॉइंट्स दैट आर मेंशन्ड इन द ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट। जब आपका ऑडिट होके आता है उसमें जो भी त्रुटियां
all shortcomings that have been pointed out by the auditor, it is very, very necessary that you carry out the rectification of that, present the information in the O form, and whatever rectification that you have carried out, जब आपकी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है तो अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट आप ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट भी पढ़ोगे, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि क्या त्रुटियां थी जिसको आपने ओवरकम किया है. यू नीड टू इम्प्लीमेंट ऑर्डर्स एंड सर्कुलर्स इशूड बाय द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट. सो जो भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जो भी सर्कुलर्स हम टाइम टू टाइम आते हैं, उसका पालन करना ये आपका आद्य कर्तव्य है. एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ. एनओसी चार्जेस, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, ये किसी बायलॉज में नहीं लिखा है या एक्ट में. इफ यू रीड, it is a circular issued by the state government of Maharashtra dated 1st of August 2001, where they have stipulated that the NOC charges cannot exceed 10% of the service charges, excluding the sinking fund, repair fund and assessment tax. General body to resolve and decide expulsion cases. Expulsion cases कहाँ होने वाले हैं? जनरल बॉडी में. अप्रूवल ऑफ न्यू बायलॉज, जनरल बॉडी. मेंटेनेंस फी अगर बढ़ानी है, जनरल बॉडी. रिपेयर फंड बढ़ाना है, जनरल बॉडी के पास जाना है. सिंकिंग फंड बढ़ाना है, जनरल बॉडी. इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करना है विद द डिफॉल्टर्स, जनरल बॉडी. पार्किंग इश्यूज है, जनरल बॉडी. पेनल्टी चार्जेस, फाइन चार्जेस अगर है, ये सब डिसाइड जनरल बॉडी करेगी. ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार मैनेजिंग कमेटी अपने हिसाब से जब किसी प्रकार का फाइन या पेनल्टी डिसाइड करती है, वो इजीली चैलेंज हो सकता है, बिकॉज इसको मुकर्रर करने का सिर्फ एक ही फोरम है, दैट इज द जनरल बॉडी. सिमिलरली कैपिंग फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द सिंकिंग फंड, मेजर रिपेयर फंड, द एएमसी कॉन्ट्रैक्ट्स, द कोटेशन फॉर कन्वेंस, द एडजुडिकेशन एंड अदर कंप्लायंसेस, एवरीथिंग हैज टू गो बिफोर द general body only. No contract can be finalized by the MC or a group of people. Finalizing tenders for repairs, the PMC appointments, redevelopment resolutions, pending compliances. Why I am showing you this is, please understand that the managing committee is only there to facilitate the process. The ultimate decision making lies with the general body only. खासकर रीडेवलपमेंट का प्रोसेस जब आप करने जा रहे हो आपकी सोसाइटी में, तो प्लीज एंश्योर दैट ऑल डिसीजन मेकिंग इज डन बिफोर द जनरल बॉडी ओनली, बिकॉज फॉर एनी रीजन इफ somebody has to challenge a managing committee decision, there are all chances that you might lose. So ensure that these kind of important decision making is carried out in the general body only. Now as a secretary, as per the section 140 of the bylaw, उनके कर्तव्य क्या है? To issue share certificate within stipulated period, 6 महीने from the allotment. So the moment the society is registered and the allotments have been carried out, it is the duty of the secretary to initiate the process for giving the share certificates. In the same way, in case for issue of duplicate share certificate, कई बार लोगों का शेयर सर्टिफिकेट गुम हो जाता है, खराब हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो उस वक्त क्या देयर इज अ प्रोसीजर गिवन. व्हाई दिस प्रोसीजर इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज कई सोसाइटी में हमने देखा है कि पीपल राइट अ सिंपल लेटर, और इवन आई हैव सीन पीपल मीटिंग द सेक्रेटरी इन दी व्हाट यू कॉल्ड लिफ्ट और लॉबी, एंड उनको बोल देते सब मेरा एक वो शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया, आप मुझे एक नया सर्टिफिकेट दे देंगे. प्लीज अंडरस्टैंड, share certificate is a very, 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 very important document, and it just cannot be given like that. There is a responsibility. So do not expect your secretary or chairman or the committee to issue you a duplicate share certificate just on a small written request or a verbal request. Please understand, the moment you lose your original share certificate, it is necessary that you go and lodge a police complaint. बहुत सिंपल प्रोसेस है. आप पुलिस स्टेशन जाओगे, उनको आप बताओगे कि वो गुम हो गया है, मिसप्लेस हो गया है. पुलिस स्टेशन से आपको एक कागज़ मिलेगा जिसमें वो दर्ज कर देंगे कि दिस सो एंड सो पर्सन का सो एंड सो शेयर सर्टिफिकेट नंबर सो एंड सो वगैरह उस पर लिखा जाएगा. वो आपको एक पेपर देंगे. उस पेपर को लेकर
आने के बाद आपको एक एफिडेविट बनाना होता है, एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनाना होता है और एक एप्लीकेशन बनाना होता है, कवरिंग नोट, विच यू हैव टू सबमिट टू द सोसाइटी. Once you submit it to the society, then it will be kept before the managing committee. There the committee will then issue a paper notice, जिसका पैसा आपको भरना है. पेपर नोटिस में ये लिखा जाएगा, इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि भाई सो एंड सो हैज अप्रोच्ड अस फॉर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. अगर किसी के पास है, किसी को मिला है या किसी के पास रखा है, तो दे नीड टू कम फॉरवर्ड एंड प्रेजेंट इट टू द सोसाइटी. इफ within 14 days nobody comes forward, then the committee is free to issue them a duplicate share certificate. When you issue the duplicate share certificate, please ensure that you write on top duplicate. Otherwise, if somebody is playing a mischief, so they will utilize 2 share certificates and 2 सर्टिफिकेट जिसके हाथ में है वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है. तो प्लीज एंश्योर दैट यू राइट डुप्लीकेट ऑन टॉप. एट द सेम टाइम अगर सॉइल्ड है, बर्न्ड है, टोन है, टुकड़ा है, उसके ऊपर इंक गिरा है, किसी कारणवश वो डिसफिगर हुआ है, तो देन सिंपल है, आप उसको सोसाइटी में जमा करो, एक एफिडेविट उसके साथ दे दो एंड मैनेजिंग कमेटी आपका रिक्वेस्ट कंसिडर करके आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी. 27 to 30 बायलॉज आपने बायलॉज ऑलरेडी सीख लिए. वेयर द सेक्रेटरी टू डील विद रेजिग्नेशंस इंक्लूडिंग एसोसिएट एंड नॉमिनल, ये सेक्रेटरी का दायित्व होगा. And to enter nominations and revocations from time to time. As per 47B, he is supposed to issue the notice regarding repairs. As per 49 to 54, to deal with cases of expulsion. Expulsion क्या, कौन से सिचुएशन हो सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं. अगर persistent default रही, expulsion is not easy, is not possible also in many cases. It's very difficult to expel a person. But of course, पहली कार्रवाई under section 154B29 वो होनी चाहिए फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज. सेकेंड वुड बी विलफुली गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू द सोसाइटी. सोसाइटी को गलत नाम बता रहे हैं, फॉर्म्स गलत भर रही है, कुछ भी, तो आप कार्रवाई कर सकते हो. प्रूफ ऑफ मिसयूज ऑफ फ्लैट रेसिडेंशियल के लिए लिया है और वहाँ पे कोई गलत काम चल रहा है या उसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, तो आप उसके ऊपर ये कार्रवाई कर सकते हो. सीरियस नेचर ब्रीच ऑफ लॉस, अगर कोई लॉस का ब्रीच कर रहा है सीरियसली, मतलब जो सचमुच माफ करने लायक नहीं है सिचुएशन, उस सिचुएशन में डेफिनेटली आप उसको एक्सपल्शन की प्रक्रिया कर सकते हो. फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, व्हेन द सोसाइटी इज गोइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर उस वक्त आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो गलत है, मिसलीडिंग है, फॉल्स है, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो इफ दिस इज brought to the notice, then you have the provision where you can conduct the expulsion process. In 5 years, if he has not attended a meeting, of course for last year this clause was removed, to deal with all kinds of applications which are to be either addressed to the secretary who shall acknowledge it. Any application given the society के secretary का दायित्व है, he has to accept it. ये problem बहुत सारे सोसाइटी में देखा हमने कि सेक्रेटरी सिग्नेचर नहीं देता है. प्लीज अंडरस्टैंड, एज पर बायलॉ 63 सेक्रेटरी का कर्तव्य है कि ही हैज टू एक्नॉलेज एनी और ऑल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस दैट आर कमिंग टू हिम. एनी शॉर्टकमिंग्स टू बी इन्फॉर्म विद इन 15 days. अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं 15 दिन के अंदर वो उनको बता देगा. एप्लीकेशन टू बी प्लेस्ड इन द एमसी और द जीबी हेल्ड आफ्टर द रिसेप्शन ऑफ द एप्लीकेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन इट इज. एप्लीकेशन टू बी डिस्पोज विद इन 3 months. अगर 3 महीने में आपने जिस भी कारण एप्लीकेशन किया हुआ सोसाइटी को और आपको उसका अगर उस 3 महीने के अवधि में अगर आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है, देन यू आर फ्री टू टेक रिकोर्स ऑफ द लॉस, बिकॉज इट इज देयर ड्यूटी टू रिकॉर्ड द रीजन फॉर रिजेक्शन. अगर किसी कारणवश उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है तो उनका कर्तव्य है कि उनको उस कारण को नोंद करना बहुत जरूरी है. They need to record for what reason they are going to reject that application, and the secretary has to communicate the decision of the managing committee or the general body to the applicant within 15 days of its decision. So suppose you are not attending the meeting, you are not there, but you have made an application, तो ये कर्तव्य होगा सेक्रेटरी का 15 days के अंदर आपको बताना कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है और किस कारण से रिजेक्ट हुआ है. इफ फॉर एनी रीजन 3 महीने तक आपको कोई आंसर नहीं मिलता है, you are deemed to be the member of the society, where under section 22(2) you can go and approach the deputy registrar for
getting proper membership. Now as per bylaw number 67A, secretary to prepare the bill and demand notice. So जितनी भी बिल्स इश्यू होती है सोसाइटी से, उसके नीचे सिग्नेचर किसकी होनी चाहिए? सेक्रेटरी की। उसी प्रकार से कोई डिमांड नोटिस निकलती है व्हेन यू आर गोइंग फॉर रिकवरी, तो वहां पे साइन कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा। सेक्रेटरी टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स, मतलब ये लिस्ट कौन बनाएगा? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी टू इश्यू द अलॉटमेंट लेटर एंड ऑब्टेन द कंफर्मेशन, ये भी उसके पास ही है कि जितने अलॉटमेंट लेटर दिए जाएंगे वो सेक्रेटरी देगा और उसकी कंफर्मेशन भी वो ऑब्टेन करेगा। सेक्रेटरी टू इश्यू द एजेंडा नोटिस ऑफ द जनरल बॉडी एज प्रोवाइडेड इन बायलॉ नंबर 162, तो जनरल बॉडी का जो एजेंडा होता है वो साइन कौन करेगा? सेक्रेटरी साइन करेगा। और ये नोटिस जो दी जाएगी लोगों को, वो किस प्रकार दी जाएगी? आइदर बाय हैंड डिलीवरी और बाय रजिस्टर्ड एडी और बाय ईमेल, and of course you need to display it on the notice board because any notice that is displayed on the notice board is deemed to be served, मतलब एक बार नोटिस बोर्ड पे डाल दिया तो ये समझा जाता है कि वो सबको मिल गई है। Having said that, it is still necessary that you send the notices by hand delivery or email। अभी तो WhatsApp भी है, अभी तो बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप इसको ईमेल भी कर सकते हो। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फंक्शंस क्या है वो समझ लेते हैं। टू पुट द नोटिस बोर्ड विद द सोसाइटी नेम, फुल एड्रेस विद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये उनका कर्तव्य है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद सोसाइटी का नाम लिखना बड़े अक्षरों में, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना, और हर सोसाइटी में अगर एक से ज्यादा विंग्स है तो हर विंग में एक नोटिस बोर्ड का होना जरूरी है, नेसेसरी है। टू प्रोवाइड और रिवोक मेंबरशिप, नॉमिनेशन एक्सेट्रा, सोसाइटी में रिवोक भी होते हैं, प्रोवाइड भी होती है, मेंबरशिप, नॉमिनेशन, ये सब चलते रहता है। लेकिन ये सोसाइटी मेंबरशिप कौन देगा आपको? सोसाइटी देगी आपको। एट द सेम टाइम टू टेक डिसीजन ऑन वेरियस एप्लीकेशंस, किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन आता है तो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग ये कोऑपरेटिव सोसाइटी लेगी। टू टेक एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर एनक्रोचर्स, आज की तारीख में डिफॉल्टर्स तो एक बीमारी है ही है, उसके साथ एनक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सोसाइटी फेस करती है, तो इनके खिलाफ एक्शन लेने का दायित्व किसका होगा? इट विल कम अंडर दी सोसाइटीज फंक्शनिंग। तो एनक्रोचर्स के ऊपर भी उनके ऊपर फाइन लगाना, उनके ऊपर बीएमसी से एक्शन लेना, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड एनक्रोचमेंट किया हुआ जगह उसको निकालने का किसी भी सोसाइटी के पास कोई पावर्स नहीं है, कोई ताकत नहीं है। दे हैव टू गो थ्रू दी चैनल विच इज दी लोकल बीएमसी, उनके थ्रू ही आप इसको निकाल सकते हो या उसको हटा सकते हो। आप अपने हिसाब से अपने मन से वो नहीं निकाल सकते। मैनेजिंग कमेटी टू फाइनलाइज द ड्राफ्ट ऑफ द मिनट्स ऑफ द जनरल बॉडी विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ द मीटिंग। आपकी जनरल बॉडी के बाद 3 महीने का अवधि दिया गया है उनको मिनट्स ड्राफ्ट करने के लिए। उसी के बाद मतलब 15 दिन, मतलब आफ्टर दी 3 months पीरियड इज ओवर, दे हैव टू कॉल अ मैनेजिंग कमेटी मीटिंग। वहां से 15 दिन का उनको और अवधि दिया जाता है। सो 3 महीना प्लस 15 days is the total period that the managing committee has got. Members to revert within 15 days। आपको जब मिनट्स की कॉपी मिलती है उसको पढ़ने के बाद आपका कोई सुझाव है, कोई रिमार्क है, कोई ऑब्जर्वेशंस है, वो आपको सोसाइटी को 15 days के अंदर भेजना जरूरी है। सब्सिक्वेंटली मैनेजिंग कमेटी में आप जो भी रखोगे, जो भी भेजोगे वो रखा जाएगा। आपके ऑब्जर्वेशंस, आपके रिमार्क्स, उसके ऊपर चर्चा होगी। अगर कमेटी को लगता है कि आपने जो भी इनपुट्स दिए हैं वो सोसाइटी के हित में है या सचमुच वो मिनट्स में आना चाहिए, तो ये उनका प्रेरोगेटिव है। इट इज अप टू देम टू डिसाइड वेदर टू इंक्लूड दैट और एक्सक्लूड दैट। सो अ मैनेजिंग कमेटी मीटिंग विल बी कॉल्ड इफ दे रिसीव दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस, ऑब्जर्वेशंस, सजेशंस फ्रॉम द मेंबर्स। Based on the discussion held within the managing committee, it will be decided whether they will be including those observations, suggestions, remarks, or whether they would not take it into consideration. But as I said, it is the prerogative of the managing committee whether they want to include or exclude that. Post final discussion, the draft minutes to be finalized and recorded in the minutes book by the secretary or any other person authorized in that behalf. मतलब एक बार जब उन्होंने सर्कुलेट कर दिया सबको, उसके बाद जो ऑब्जेक्शंस, ऑब्जर्वेशंस या रिमार्क्स मिलते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए कमेटी डिसाइड करेगी और कमेटी उस मिनट्स को फाइनल करेगी। एक बार उन्होंने उसको फाइनल कर दिया, उसके बाद वो मिनट्स बुक में लिखा जाएगा।
ये जो मिनट्स फाइनल किए जाएंगे इसको रिसर्कुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं, बिकॉज ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि वंस द मिनट्स आर फाइनलाइज्ड इन द मैनेजिंग कमिटी डू वी हैव टू रिसर्कुलेट देम? नो, you need to put them on paper in your minute book and they will be read before the next ensuing general body, special general body meeting or MC meeting, whatever that is. Post election process as per bylaw 122A, the first meeting of the newly formed managing committee and the outgoing committee within 15 days of the constitution of the MC to be held. मतलब जब एक कमिटी डिसॉल्व होती है या कमिटी चली जाती है, इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, उसके बाद जो नई कमिटी आती है, ये हैंडओवर का प्रोसेस किस प्रकार से होता है, तो नई और जूनी कमिटी मीटिंग मेंबर्स की एक मीटिंग तय की जाती है। उस मीटिंग में द सेक्रेटरी ऑफ द आउटगोइंग एमसी शैल इशू दैट नोटिस, उस मीटिंग को बुलाने के लिए अगर किसी कारणवश सेक्रेटरी ने उस नोटिस नहीं इशू किया तो चेयरमैन शैल इशू इट। ऑन फेलियर ऑफ बोथ द रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी विल इशू दैट नोटिस, एंड ये नोटिस जो इशू की जाती है वो पुराने और नए कमिटी मेंबर्स की एक जॉइंट मीटिंग कंडक्ट की जाती है जहां पे चेंज ऑफ चार्ज और हैंडओवर ऑफ चार्ज किया जाता है, एंड हैंडओवर ऑफ चार्ज इज ऑलवेज डन फ्रॉम द एक्स चेयरमैन टू द करंट चेयरमैन। सो चार्ज हमेशा चेयरमैन टू चेयरमैन ही दिया जाता है। सेक्रेटरी टू इशू द नोटिस फॉर द मैनेजिंग कमिटी इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन व्हेन एवर देयर इज एमसी मीटिंग टू बी हेल्ड, द सेक्रेटरी विल कंसल्ट द चेयरमैन एंड विद in consultation with the chairman the notice will be issued. Failure on part of the secretary, the chairman can issue. किसी कारणवश अगर सेक्रेटरी इशू नहीं कर रहा है नोटिस कमिटी मीटिंग बुलाने के लिए, तो चेयरमैन के पास वो पावर दिए कि ही कैन इशू। फेलियर ऑन बोथ, अगेन द हाउसिंग फेडरेशन ऑन रिसीव्ड ऑफ सच रिक्वेस्ट, मतलब अगर दोनों ने नहीं किया तो बाकी लोग उनको रिक्वेस्ट डाल सकते कि हमको कमिटी मीटिंग बुलानी है या विच एवर मीटिंग दैट यू वांट टू कंडक्ट, देन फेडरेशन के पास वो पावर्स है। As per bylaw 136, the secretary has to record the minutes and place the same before the next MC. So although the bylaws stipulates कि ये सेक्रेटरी का दायित्व है मिनट्स लिखने के लिए, आज के दौर में सोसाइटीज आर अपॉइंटिंग मैनेजर्स को मीटिंग में बिठाया जाता है और मैनेजर्स मीटिंग में बैठकर बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं या मिनट्स लिखते हैं, बट दे आर नीडेड टू बी साइंड बाय द सेक्रेटरी, which automatically denotes that it is written by the secretary. In case the secretary is not signing, I mean, it would be preferably done that the secretary and chairman both sign the meeting so that it is authenticated. But in absence of the secretary and chairman, also an alternate arrangement can be done. किसी कारणवश जिन्होंने अटेंड किया उसमें से किसी एक बंदे को आप ऑथोराइज कर सकते हो कि आप इस मीटिंग को साइन करोगे, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है, बट those minutes have to be signed by somebody. Without that there is no authentication for that minutes. 143 says secretary is responsible to maintain and keep account books, register and other records. So ये जितने records है सोसाइटी के, इसको मेंटेन करना और उसको प्रॉपरली रखना ये कर्तव्य सेक्रेटरी का होता है। इसलिए बहुत सारे सोसाइटीज में मैंने यह देखा है कि ये सारे रिकॉर्ड्स सेक्रेटरी अपने घर में स्टोर करते हैं। जब पूछा जाता है तो कहते हैं सर ये तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इसलिए यहाँ रखता हूँ। आइडियल वे इज दैट यू बाय अ कबोर्ड विथ अ प्रॉपर लॉक एंड की एंड यू स्टोर दीज डॉक्यूमेंट्स इन दैट कबोर्ड, जिसकी चाबी हमेशा सेक्रेटरी के पास ही रहनी चाहिए। तो उसको यह भी समझना है कि किसी भी वक्त उस कबोर्ड की चाबी अगर किसी को हैंड ओवर करना है और अगर वहाँ पे किसी प्रकार का हादसा होता है, कोई भी शॉर्टकमिंग्स आते हैं, तो दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ द सेक्रेटरी। If these documents and all these records are not kept in order, if there is an inspection, a routine inspection or maybe by a flying squad, there is all the possibility that the society would be in grave trouble. And who would be the person responsible for that? It will be the secretary. So that is why the secretary should understand, being the prime member of that society as per his post, it is going to be his responsibility to maintain and keep the account book and registers and all other records in his custody in proper condition. He cannot escape his responsibility with anything for that matter. At the same time, as a secretary, he can return only 5,000 rupees for petty cash expenses. उसके ऊपर अगर उसके पास पैसा निकलता है
तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है फॉर अ कंप्लेंट दैट इज लॉस्ट। एक्सेसिव कैश इफ एनी इन हैंड टू बी डिपॉजिट विद इन 3 days टू द बैंक। सपोज किसी काम के लिए आपने एक XYZ अमाउंट निकाली है और किसी कारणवश वो काम आपने न करने का सोचा है या किसी कारणवश वी हैव डिसाइडेड नॉट टू डू दैट वर्क, then the excessive cash which is available with you, if it is in excess of 5,000, then it is expected that the secretary has to redeposit that cash into the bank. He cannot say अभी वो ठीक है मैं दूसरे काम के लिए यूज करूंगा. For a long period he is not supposed to carry that amount which is exceeding 5,000 rupees. Within 45 days of closure of the cooperative year, the secretary to finalize the accounts, etc. So generally once 31st March is there, then April, May, June tak it is his duty that he starts working on the accounts and he starts finalizing on the accounts. The secretary to produce all records and documents for internal and statutory audit and initiate the process for accomplishing all the requirements to call the AGBM. So annual general body के पहले जो audit करना है उसके लिए जो accounts की documentations है, records है, इन सारे को प्रोड्यूस करना विद द अकाउंटेंट, प्रॉपर ऑडिट करके लेना एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के पहले, ये पूर्णता कर्तव्य सेक्रेटरी का होगा. इसलिए जब आप सेक्रेटरी बनते हो तो आपका असली रिस्पॉन्सिबल कार्यकाल ये March 31 के बाद शुरू होता है, बिकॉज दैट इज अ टाइम व्हेन यू आर रिक्वायर्ड और रादर इट इज एक्सपेक्टेड दैट एज अ सेक्रेटरी यू विल गैदर ऑल दिस records and documents, reach it properly to the accountant, see that it is properly audited and accounted. There is a huge task which is in front of you once 31st March is gone. The secretary to prepare the draft audit rectification report in O form and place it before the MC. So जब कोई त्रुटियां आपको बताई जाती है आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर के थ्रू, तो उस त्रुटियों को पूरा परिपूर्ण करने के लिए सेक्रेटरी का दायित्व रहेगा. He will prepare the draft of the audit rectification जो O form में आप करोगे और वो बनाने के बाद आप कमिटी के सामने रखोगे उनकी अप्रूवल के लिए. फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द मैनेजिंग कमिटी टू सबमिट द ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार एंड द एनुअल जनरल बॉडी, मतलब आपकी जब मीटिंग होगी, द MC इज डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 146 ऑफ द एक्ट एंड लायबल फॉर पेनल्टी अंडर सेक्शन 147 ऑफ द एक्ट. तो प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर ये रिटर्न रिपोर्ट, मतलब इसको कितनी अहमियत दी गई वो आप समझिए कि अगर ये रिपोर्ट आपने प्रॉपरली फॉर्मुलेट नहीं किया इन O फॉर्म, उसको प्रस्तुत नहीं किया और रेक्टिफिकेशन कैरी आउट नहीं किए, तो इट इज कंसिडर्ड दैट यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 146 ऑफ द एक्ट एंड 147 ऑफ द एक्ट. मतलब दिस इज देयर जिसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है. The secretary to inform the members regarding any breaches of bylaws committed. अगर किसी मेंबर ने कोई बायलॉस का उल्लंघन किया है तो उसको इन्फॉर्म करना सेक्रेटरी का काम रहेगा. मैक्सिमम कंसोलिडेटेड पेनल्टी नॉट टू एक्सीड ₹5,000. नाउ दिस इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच आई हैव शेयर्ड विद लॉट ऑफ पीपल. Whenever there is a nuisance created by any member in the society, उस मुद्दे को लेकर जब जनरल बॉडी बुलाई जाती है या मैनेजिंग कमेटी बुलाई जाती है, तो कई बार मैंने ये देखा है कि आनंद फानंद में लोग अपना गुस्सा जाहिर करते वक्त कुछ इस प्रकार जाहिर करते हैं कि सर वो सुनता ही नहीं है, उसको कितनी बार समझाया, एक काम करो उसको 1,000 रुपीज पर डे फाइन लगा दो. प्लीज 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 अंडरस्टैंड, आपका गुस्सा जायज है लेकिन ये पेनल्टी नाजायज है, बिकॉज द लॉ क्लियरली स्टिपुलेट्स दैट किसी भी प्रकार का अगर पेनल्टी किसी भी फ्लैट ओनर के ऊपर लगानी हो तो वन टाइम या ऑल टुगेदर इन 12 months इट शुड नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज. तो आप समझ सकते हो कि अगर पर डे 5,000 लगाओगे या 1,000 लगाओगे तो 5,000 तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा. तो एज पर द लॉ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन जो आप लगा सकते हो किसी के भी ऊपर for any kind of breaches is not exceeding 5,000 rupees in an entire year. The secretary to accept any and all complaints pertaining to society related issues and place them before the MC and communicate the decisions of the MC to the concerned member.
तो मतलब रिसीव भी करने का काम उसका ही होगा, प्रेजेंट करने का काम भी उसका ही होगा, उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा, जो भी निचोड़ आएगा, वो मेंबर तक पहुंचाने का भी दायित्व सेक्रेटरी का ही होगा. Although these were the specified duties and responsibilities of the secretary, the main duty would be to ensure smooth functioning of the society. सेक्रेटरी का काम ये रहेगा कि भाई सोसाइटी प्रॉपरली स्मूथली कंडक्ट होनी चाहिए. एज पर 148B2, you need to pay honorarium to the office bearers of the society not exceeding 15% of the net surplus to reward them for the sacrifice of their valuable time for working of the society or as decided by the general body. मतलब ये जो members जो चुने जाते हैं on the committee, they are working on honorary basis, that you all know. मतलब बार बार हमको ये सुनने को मिलता है कि हम तो honorary काम कर रहे हैं, लेकिन as per 148B2 इन लोगों को एक honorarium मतलब एक stipend या whatever name you want to give it can be paid to them which should not exceed 15% of the net surplus. तो एक साल का आपका पूर्ण अकाउंटिंग का लेखा जोखा होने के बाद जो भी सरप्लस अमाउंट आपके पास है उसका 15% तक की कैपिंग दी गई है. यू कैन पे टू योर कमिटी मेंबर्स एज एन ऑनरेरियम. इट इज नॉट अ मस्ट, बट एज आई सेड, in some societies who are cash rich, who would like to reward their committee members for doing a good job of working, then वहाँ पे ये capping दिया गया है, which is not to exceed 15% of the net surplus. Instead of paying them, the better way is that you appoint a manager and pay him proper salary, because once a manager is appointed with a salary, in all fairness he is going to deliver whatever scope of work that you have decided for him. Now under special conditions, please remember you can call a special general body meeting within 1 month from the date of demand by 1/5 of the members. So अगर किसी विषय को आपको लेना है जनरल बॉडी के अंदर और मेंबर्स अगर आपस में मिलके तय करते हैं कि हमको एक जनरल बॉडी बुलानी है, तो 1/5 of the members need to sign the requisition, okay? And if they want, they can demand for the SGBM, which can be called within 1 month from the date of the demand, or as directed by the Honorable Deputy Registrar or by the Housing Federation. If society fails to call the SGBM, then Deputy Registrar may call by appointing an authorized officer. तो Deputy Registrar खुद नहीं आएगा, वो एक AO अपॉइंट करेगा, and the authorized officer will come there to conduct the meeting. AGM not conducted on or before 30th September, the managing committee members can be barred for contesting elections for 5 years under section 75(5). एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट, जैसे हमने कहा कि अगर किसी कारणवश कंप्लेंट होता है, कमिटी को डिसॉल्व किया जाता है और वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने की नौबत आती है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी और एडमिनिस्ट्रेटर बाय डेप्यूटी रजिस्ट्रार under section 77A and code of conduct by the administrator is what that I am going to explain to you. Now let us first understand what are the reasons for appointing the administrator. एक रीजन ये हो सकता है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, कि रिकॉर्ड्स किसी कारणवश इनकम्प्लीट है, कंप्लेंट आ गई, इंस्पेक्शन में मालूम पड़ा. सेकेंड रीजन इनकम्प्लीट अकाउंट्स, अकाउंट में कुछ धांधली है और अकाउंट्स बराबर से आपने कंप्लीट नहीं किया है. सी इलेक्शन इश्यूज, जहां पे आपका कोरम नहीं बन रहा है, मेंबर्स या तो डेथ की वजह से कम हो गए या रेजिग्नेशन हुआ है या किसी डिस्क्वालिफिकेशन वजह से नहीं हुआ है. किसी भी कारणवश अगर मैनेजिंग कमिटी इज डिसॉल्व्ड मिड टर्म, देन देयर आर चांसेस दैट देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटर और अ कमिटी, एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी आपको बिठाई जाएगी बाय द डेप्यूटी रजिस्ट्रार. प्रोसेस क्या है? द एडमिनिस्ट्रेटर टू कॉल फॉर अ स्पेशल जीबी टू अनाउंस हिज अपॉइंटमेंट वंस द डेप्यूटी रजिस्ट्रार अपॉइंट्स हिम. एडमिनिस्ट्रेटर कर्तव्य होगा कि वो एक जीबी बुलाएगा और उसमें वो अनाउंस करेगा कि ये कमिटी डिसॉल्व कर दी गई है, आज से मैं आपका एडमिनिस्ट्रेटर हूँ. ऑल वर्किंग एंड रिपोर्टिंग एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ द ऑनरेबल रजिस्ट्रार्स. ये जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, इसकी पूर्णतः वर्किंग और इसकी रिपोर्टिंग, ही विल बी रिपोर्टिंग स्ट्रेट टू द डेप्यूटी रजिस्ट्रार. उसका बॉस कौन है? डेप्यूटी रजिस्ट्रार है. अपॉइंटेड कमिटी और ऑथराइज्ड ऑफिसर हैव सिमिलर पावर्स एज दोज दैट आर विद द मैनेजिंग कमिटी और ऑफिस बेरर्स. कहने का तात्पर्य यह है
कि ये जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाएगा, either 3 members will be appointed as board of administrators or 1 administrator will be appointed. इनके पास वही पावर्स है जो एक नॉर्मल कमिटी के पास है, जो एक नॉर्मल सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर के पास है. कहने का तात्पर्य यह है, टू मेक यू अंडरस्टैंड इन वन लाइन, एडमिनिस्ट्रेटर इज अ सिंगल सिग्नेटरी टू योर चेकबुक. So instead of 2 signatories or 3 signatories on the checkbook, he alone can sign that checkbook, based on which he has got equivalent powers that the committee might have or the office bearers might have. So that is the kind of powers they get once they are appointed. Now before appointment, the deputy registrar is required to publish a notice on the society notice board inviting objections and suggestions कि भाई मैं निकालने वाला हूँ, तो अगर किसी को ऑब्जेक्शन सजेशन तो बताइए. बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई हैव टिल डेट नॉट सीन अ सिंगल नोटिस ऑन एनी नोटिस बोर्ड, बट इट इज़ माई ड्यूटी टू टीच यू व्हाट द लॉ स्टिपुलेट्स, सो आई एम टेलिंग दैट टू यू. नो नोटिस टू बी इशूड इफ डेप्यूटी रजिस्ट्रार इज ऑफ ओपिनियन दैट इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड. मतलब ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि वेन एवर देयर इज अ कंप्लेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट द कमिटी फॉर डिसॉल्विंग देम और फॉर प्लेसिंग देम विथ ए एडमिनिस्ट्रेटर, ये बड़ा कमाल का इत्तेफाक है कि इट इज ऑलवेज अ सिचुएशन वेयर द डेप्यूटी रजिस्ट्रार इज ऑफ द ओपिनियन दैट इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन दैट दे स्विंग इनटू इमीडिएट एक्शन. इफ नो मेंबर इज रेडी टू वर्क, इवन एन आउटसाइडर कैन बी अपॉइंटेड. सो यहाँ पे अगर 3 लोग सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड पे आना नहीं चाहते, तो फिर जो पैनल है उसमें से एक बंदे को एडमिनिस्ट्रेटर करके अपॉइंट किया जाता है. Administrator is not authorized to take unilateral decisions on. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडमिनिस्ट्रेटर जब बैठता है किसी सोसाइटी के ऊपर, तो उसके पास अथॉरिटी नहीं है किस चीज़ के लिए. ऑन मेंबरशिप ही कैनॉट डिसाइड, ऑन मेजर रिपेयर्स एक्सपेंडिचर ही कैनॉट डिसाइड, ऑन रीडेवलपमेंट ही कैनॉट डिसाइड. 4 जुलाई 2019 का सर्कुलर क्लियरली सेज that administrator has no powers to decide on redevelopment. He also cannot decide on withdrawal of cases and or issuing memberships. मतलब अगर किसी कारणवश सोसाइटी के ऊपर कोई केसेस चालू है, किसी मेंबर ने केस किया है फॉर एग्जांपल, तो उस केस को खारिज करने की उनके पास पावर्स नहीं है. एट द सेम टाइम उनके पास यूनिलैटरली किसी को मेंबर बनाना या निकालने की पावर बिल्कुल नहीं है. He is appointed to look after the interests of the society and his member. उसका मेन कार्यक्रम तो यही दिया गया है. Now an administrator is supposed to hold office for 6 months, and his prime duty is to ensure that a new committee comes in his place when he leaves. तो जनरली ऑफिसर को, जिस एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है, वो बिफोर ही लीव्स द सोसाइटी वो इलेक्शन जरूर कंडक्ट करता है, नए कमिटी को पूरा कारोबार सौंप कर फिर वो जाते हैं. अंडर नो सर्कमस्टेंसेस टर्म ऑफ द कमिटी और द ऑथराइज्ड ऑफिसर एक्सटेंड 6 month period. Now please understand, here I am saying that their term cannot exceed 6 months, but there are so many societies where there are administrators sitting for 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. Of course, as I said, in the law there are a lot of loopholes, so उसका इस्तेमाल किया जाता है. The deputy registrar has the power to change the committee or any or all members including the AO. So अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है, उनको अगर निकालना है तो ये पावर किसके पास है? रजिस्ट्रार के पास है. जिस एडमिनिस्ट्रेटर को उन्होंने नियुक्त किया है, अगर उनको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, सोसाइटी का नुकसान हो रहा है या कंप्लेंट्स बहुत आ रहे हैं, तो उसको निकालने का पूर्णतः अधिकार ये किसके पास है? डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास है. द रेम्यूनरेशंस टू बी पेड टू द अपॉइंटेड कमिटी or the AO as per the provisions of subsection 2 of section 78A. So इनको कितना पगार दिया जाएगा, इनको कितना पैसा दिया जाएगा, ये ऑलरेडी उसमें स्टिपुलेट किया गया है इस सेक्शन के अंदर. अ पीस ऑफ एडवाइस, अंडर इवन द वर्स्ट काइंड ऑफ कंडीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी और ऑथराइज्ड ऑफिसर इज अनएडवाइजेबल. एज अ कंसल्टेंट आई एम शेयरिंग विथ यू माई व्यूज. किसी भी परिस्थिति में कितना भी झगड़ा हो, कितना भी मसला हो, उसका हल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है. रिमेंबर, सोसाइटी हैज बीन फॉर्म्ड टू परफॉर्म
in the interest of its members, and even the rarest kind of issues, if any, can be resolved. सोसाइटी में ऐसा कोई मसला नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता है. जैसे मैंने कहा, अगर आप 1 मिनट के लिए अपना ईगो साइड में रखते हो तो डेफिनेटली हर समस्या का समाधान आपको मिल सकता है. बिकॉज सोसाइटी ये आपस में साथ में रहने के लिए बनाई गई है. तो आपस का मनमुटाव के लिए अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर लाते हो वो टोटली गलत बात है. इफ मेंबर्स फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द वेल डिफाइंड लॉज एंड रूल्स अंडर विच दिस सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स आर गवर्न्ड, देन यू विल नेवर फेस अ प्रॉब्लम ऑफ कॉलिंग फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर. तो आपका काम यह है कि जो कायदा कहा गया है उस कायदे का अच्छी तरह से अगर आप पालन करते हो तो एडमिनिस्ट्रेटर को लाने की नौबत नहीं आती है. फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसीज. You see, the State Cooperative Election Authority, there is a circular dated 26 October 2018. ये बहुत important circular है, where according to the provisions in section 73 CB subsection 1 of the MCS Act 1960, the responsibility to fill the vacant post of board of directors, office bearers of the society, and any casual vacancy occurred in the committee according to the prescribed procedure is vested on the State Cooperative Election Authority. So अगर कोई पोस्ट वैकेंट हो गई है तो उसको भरने का दायित्व इनको दिया गया है. Section 73 CB 14 subsection B says that it is obligatory to inform the authority regarding any casual vacancy occurred in the committee or in the office bearers of every cooperative society within 15 days of the occurrence of the vacancy. मतलब as soon as there is a vacancy created in the committee, it is the duty of the society to inform. Under section 73 CB 14B 14 it says you have to inform the authority within 15 days of this vacancy. So ये पहला मुद्दा आप याद रखिए कि the moment there is a vacancy you have to inform them within 15 days. In the event of vacancy occurring on account of death, resignation, disqualification or removal of the member of a society, or through such a member becoming incapable of acting prior to the expiry of his term of office or otherwise. मतलब अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ डेथ, मृत्यु हो गई मेंबर की, या मेंबर ने रिजाइन किया है, या किसी कारण वो डिस्क्वालीफाई हुआ है, या देयर इज अ रिमूवल, उसको निकाल दिया गया है, और किसी कारणवश की वो कहता है कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, मैं अब टाइम नहीं दे पा रहा हूं, ऐसे सिचुएशन में अगर कोई पोस्ट वेकेंट हो जाती है, देन द अथॉरिटी हैव द पावर टू फिल अप द सेड कैजुअल वेकेंट पोस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस इन द रूल 74 ऑफ द एमसीएस एक्ट, दैट इज द इलेक्शन टू द कमिटी रूल्स 2014. इसके अंडर वो दिया गया, वो क्या दिया गया वो भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं. स्टेट इलेक्शन कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी पास्ड द फॉलोइंग ऑर्डर्स. एक ऑर्डर उन्होंने पास किया है, वेयर द पावर्स डेलिगेटेड अंडर रूल 3 सब ब्रैकेट 5 ऑफ द एमसीएस एक्ट इलेक्शन टू द कमिटी रूल्स 2014 रिगार्डिंग फिलिंग अप द कैजुअल वैकेंसी इन द कमिटी. मतलब अंडर रूल 3 सबसेक्शन 4 वो कैसे भरना है वो उन्होंने बताया गया है, which I am now repeating for you. The society which has completed 2.5 years or more from the date of the result of the election of the society shall fill the seat from the same category from which they are. मतलब जिस सोसाइटी का कार्यकाल 2.5 साल के ऊपर का हो चुका है, वो सोसाइटी में अगर कमिटी में कोई वैकेंसी क्रिएट हुई है, अगर कोई जगह रिक्त हुई है, तो उसको भरने का उनके पास एक प्रावधान है. उसका प्रोसीजर क्या है वो समझ लीजिए. तो अगर मैनेजिंग कमेटी नियुक्त हुई है और उसका कार्यकाल 2.5 साल से भी कम है, तो उनके पास कोऑप्शन का ऑप्शन नहीं है. दे डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ गेटिंग अ मेंबर ऑन बोर्ड थ्रू द कोऑप्शन प्रोसेस. बट इफ दे हैव एक्सीडेड देयर टेन्योर ऑफ 2.5 years, 5 साल के कार्यकाल में अगर 2.5 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ हो, तो वैसे सोसाइटी के पास पावर्स दी गई है कि वो कोऑप्शन के थ्रू मेंबर्स को कोऑप कर सके.
उसका प्रोसेस क्या है वो आप समझ लीजिए. प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर फिलिंग अप द कैजुअल वैकेंट पोस्ट इज एज फॉलोज. 1. The committee to inform regarding the casual vacancy to the authority and district stroke taluka stroke ward cooperative election officer within 15 days of the occurrence of the vacancy. So in short 15 days के अंदर आपने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को आप इन्फॉर्म करो. Then the managing committee to select the eligible person by co-option amongst the members of the society from the same category in which the post was vacant. मतलब although ये कमिटी उसको लेने वाली है, वेकेंट पोस्ट भरने वाली है, लेकिन जिस बंदे को या जिस पर्सन को वो कोऑप्ट करने वाली है, ही हैज टू बी फ्रॉम द सेम कैटेगरी. जिस कैटेगरी में पोस्ट वेकेंट हुई है, अगर वो लेडीज की रिजर्व कैटेगरी है तो लेडीज की रिजर्व कैटेगरी में लेडीज को ही वो कोऑप्ट कर सकते. अगर वो दूसरे रिजर्व कैटेगरीज में है, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, नोमैडिक ट्राइब्स, जो भी अदर जो रिजर्व कैटेगरीज है 3, उसके अंदर से कोई पोस्ट भरनी है तो इट हैज टू बी डन फ्रॉम दी सेम कैटेगरी ऑफ पर्सन. मतलब लेडीज कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी में आ सकती है, लेकिन जनरल कैटेगरी वाला मेल लेडीज कैटेगरी में कोऑप्ट नहीं हो सकता है. नंबर 3, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग टू बी कॉल्ड फॉर फिलिंग द वैकेंसी. तो वैकेंसी कहां भरी जाएगी? ये भरी जाएगी मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में. कोऑप्शन कहां किया जाएगा? मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में. नंबर 4, society to display the notice on the notice board of the society and the registrar office for calling application. So जब मैनेजिंग कमेटी तय करती है कि भाई हमको कोऑप्शन के थ्रू किसी को लेना है ऑन बोर्ड, तो उनका कर्तव्य है कि वो एक नोटिस निकाले, इस नोटिस को नोटिस बोर्ड पे रखे, इस नोटिस की एक कॉपी रजिस्ट्रार के ऑफिस में उनके बोर्ड पे लगाई जाती है, जो कि मैंने अभी तक देखी नहीं, बट ये यहाँ पे प्रावधान दिया है. This is what the law says. For calling application from the desired eligible members, mentioning the last date for submission of the application. So उस नोटिस में क्या लिखा जाएगा? उस नोटिस में यह लिखा जाएगा कि सो एंड सो कैटेगरी के लिए इतने सीट बाकी है, भरने हैं. उसके लिए जो भी मेंबर्स इच्छुक है वो 7 दिन या 15 दिन की अवधि, जो भी आपकी कमिटी डिसाइड करे, उस पीरियड के अंदर उन्होंने अपना एप्लीकेशन, आवेदन पत्र सोसाइटी के पास सबमिट करना है. सो द मेंबर्स हु आर इंटरेस्टेड टू गेट कोऑप्टेड ऑन द मैनेजिंग कमिटी एज अ मेंबर ऑफ द कमिटी विद इन द पीरियड विच हैज बीन स्टिपुलेटेड ऑन द नोटिस नीड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन टू द सोसाइटी. एंड ये जो प्रोसेस सोसाइटी कर रही नोटिस बोर्ड पे रखने का, उसका एक प्रूफ तैयार करके सोसाइटी ने अपने रिकॉर्ड्स में रखना चाहिए कि हमने ये नोटिस सोसाइटी के बोर्ड पे ये तारीख पे लिखी थी और रजिस्टर को ये तारीख को हमने फॉरवर्ड की थी. नंबर 5, द मेंबर टू सबमिट द एप्लीकेशन विथ सेल्फ डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट इनएलिजिबल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 KA. तो अगर वो डिफॉल्टर नहीं है, ये उसको बताना है, डिक्लेरेशन करना है कि भाई मैं बोनाफाइड मेंबर हूं, मैं एलिजिबल हूं इलेक्शन कोऑप्ट होने के लिए. इसका एक सेपरेट डिक्लेरेशन उसको देना है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 73 KA ऑफ द MCS एक्ट एंड रूल्स 1961 एंड अप्रूव्ड बायलॉज ऑफ द सोसाइटी विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड टू द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी. तो सोसाइटी अगर 7 दिन के अंदर बोला है तो 7 दिन के अंदर एप्लीकेशन देना है, अगर 14 दिन बोला है तो 14 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 डेज का पीरियड के लिए वो नोटिस निकाल सकते हैं कि इस पीरियड के अंदर जिसको इंटरेस्ट है वो आके अपना आवेदन दे सकता है. सेक्रेटरी टू कॉल द मीटिंग विद इन 15 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट एज मेंशन्ड अबव. मतलब जो भी डेट डिसाइड की है सोसाइटी ने टू कॉल फॉर द एप्लीकेशंस, उस दिन से लेकर 15 डेज के अंदर मैनेजिंग कमेटी की एक मीटिंग बुलाई जाएगी. उस मीटिंग में इस एप्लीकेशन की स्क्रूटिनी की जाएगी कि एप्लीकेशन प्रॉपर से भरा है कि नहीं, उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर है कि नहीं, वो सब चेक किया जाएगा. मैनेजिंग कमेटी टू बी कॉल्ड टू डिस्कस ओनली वन सब्जेक्ट. मतलब ये जो कमेटी बुलाई जाएगी कोऑप्शन के लिए, इस कमेटी का उस दिन का सिर्फ एक ही एजेंडा होगा. नॉर्मली आप जानते हो कि हम जब कमेटी मीटिंग बुलाते हैं तो हमारा पहला एजेंडा होगा टू रीड एंड कंफर्म द मिनट्स ऑफ द लास्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग. प्लीज अंडरस्टैंड, ये मीटिंग जो कोऑप्शन के लिए आप बुलाओगे,
उस मीटिंग में सिर्फ एक ही एजेंडा होगा, दैट इज टू fill that vacant post. So managing committee to be called to discuss only one subject regarding filling up the vacant post, as discussion on any other subject shall not be transacted. Even confirming the minutes of the last meeting shall not be transacted. It is very clear. Number 8, the minutes to be submitted to the concerned office मतलब जो आपका deputers है उनको within 7 days from the date of the meeting. मतलब दिस मैनेजिंग कमेटी मीटिंग जो आप एक सिंगल एजेंडा के लिए बुलाने वाले हो, उस कमिटी मीटिंग के मिनट्स जो है आपको डेप्यूटी का ऑफिस विद इन 7 डेज आपको वहां पे जमा करने हैं. मैक्सिमम 2 कैजुअल वैकेंसीज कैन बी फिल्ड बाय कोऑप्शन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी कमिटी में से 4 मेंबर्स ने रिजाइन किया है या किसी मेंबर को डेथ की वजह से या किसी भी वजह से अगर 4 मेंबर कम हो गए फॉर एग्जांपल, तो आपके पास 4 मेंबर को कोऑप्ट करने का कोई प्रॉमिस नहीं है. यू नीड और द कैपिंग इज गिवन वेयर यू कैन ओनली कोऑप्ट मैक्सिमम 2 मेंबर्स. 2.5 साल के पीरियड के बाद जो कोऑप्शन प्रक्रिया आप इस्तेमाल करने वाले हो, उस प्रक्रिया के तहत आप सिर्फ 2 मेंबर्स को ही कोऑप्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. सो इट सेज दैट मैक्सिमम 2 कैजुअल वैकेंसीज कैन बी फिल्ड अप बाय कोऑप्शन और नॉमिनेशन इन द टोटल टर्म ऑफ द कमिटी. 2.5 साल के बाद जो भी आपका टोटल टर्म है. फॉर कैजुअल वैकेंट पोस्ट ऑकर्ड इन द मैनेजिंग कमिटी विद इन 2.5 years. तो ये सवाल लाजमी है कि अगर 2.5 साल के पहले 2 से ज्यादा अगर वैकेंसीज हो गई तो for casual vacant post occurred in the managing committee within 2.5 years from the date of the result of the elections, it is to be filled by proper elections. Then when you are short of the quorum, there is only one way to go: dissolve the committee, go for fresh elections. Now here this is in Marathi which I am giving you. This is basically resolution का format उन्होंने दिया है, वो किस प्रकार से होता है वो मराठी में है. So this is the format which you have to fill up. These are the resolutions which actually you have to put when you are doing the co-option process. So the co-option process is a stipulated process given by the state government of Maharashtra. उसमें किसी भी प्रकार का डिविएशन आप करोगे तो co-option process can be challenged.